والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لا تفسدوا في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں، نعتیں بھی سنی، تقریب بھی سنی، اور علماء اہل سنت کا ایک جنب غفیر ہے الحمدللہ۔ ان میں سب کو تو ہم نہیں بتا سکتے، کچھ مخصوص چہرے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ یہ پروگرام جناب حافظ اشفاق صاحب حشمتی، انہوں نے یہ پروگرام رچایا بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور انہیں آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ پروگرام اور جشن غوث الورا کے نام سے یہ پروگرام، کیونکہ سرکار غوث اعظم کا جشن اور ان کے چرچے کرنا، ان کا ذکر اور ان کی باتیں، یہ خود بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے کہ وہ جب دور ایسا تھا کہ بہت سارے اعتراضات ہو رہے تھے، تو وہاں فکری تلوار چلی تھی، فکری۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے، کوئی کہہ رہا تھا کچھ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کچھ ہے، تمام باتیں ہو رہی تھیں۔ اور ایسے وقت میں صرف مصطفیٰ کا شیر بن کر کے ایک میدان ہے جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے سبحان اللہ، وہ کہہ لیجئے کہ ایک معجزہ رسول اللہ، اور راحت یہ ہے کہ چوطرفہ حملے میں یکتا و تنہا ایک مقابلہ کر رہا ہو۔ اور پھر جب ان کی علمی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے تو یہ عقل ہی میں بات نہیں آتی کہ ایک آدمی اتنا قابل کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی پڑھ کر کے اتنا قابل کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقل ہی تصدیق نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ پڑھو تو آپ کتنا پڑھ لے جاؤ گے، سمجھ میں آؤ میٹر وہی ہے نا۔ بھائی مان لو آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے، آٹا بھی لانا ہے، چاول لانا ہے، اور تمام سارا مسئلہ ہے، اسی میں سونا بھی ہے، تو کتنا آپ پڑھ لے جاؤ، کتنی کتاب ہے، کتنی عمر ہے، اسی حساب سے آپ پڑھو گے۔ ابھی ان کو دیکھو تو مطلب جس فن میں قلم اٹھا دیا، جس فن میں قلم اٹھا دیا تو پھر تاجدار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا اعظم نے تیرا ترانہ۔ جلد نمبر 11 میں حضرت فتاوی رضویہ یا 12 میں، مجھے تھوڑا شبہ ہو جاتا ہے کہ 11 12 دونوں پتلی پتلی،
اس کی وجہ سے باقی اور کوئی دقت نہیں ہے. پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے, مجھے نہیں. آپ کو ہو تو آپ لے آؤ. دقت مجھے نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں. دقت آپ کو لگے کہ ہاں کیا نہیں کیا تو لے آئے, سیدھی سی بات ہے. اس میں حیران ہوا میں, دیکھا تھا کہ ایک نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ بائبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بائبل کے بارے میں کیا بتاؤں گا کہ کیا ہے اس میں. جس نے لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا ہے اس میں. بائبل جو ہے وہ ورجنل ورجنل نہیں. بائبل جو تحریف شدہ محرف کا محرف نہیں جانتا کہ کیا تحریف کیا. محرف نہیں جانتا کہ اس نے کیا تحریف کیا, کیا لکھا. تو اب یہ لکھا ہے کہ ہی نہیں پتا کہ ہم کاؤ لکھے ہیں, تو ہم کاؤ بتائے کہ کاؤ. جو لکھا ہے وہی نہیں جانتا کہ کیا لکھا. بھائی یہ تو ہے نا کہ مان لو ہم لکھے آپ نہ پڑھ پاؤ تو یہ تو ہو جاتا ہے کہ گھسیٹ کے لکھ دیے, گھسیٹ کر لکھ دیے, وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. لیکن ارے ہم جب لکھے ہیں تو ہم تو پڑھ ہی لے جائیں گے. اور جب ہم بھی نہ پڑھ پائے تب ایک مطلب یہ ہے کہ مطلب لکھا ہی نہیں کہ آؤ نہ تو کچھ جانتا ہے. یہی تو ہوا. تو وہ اعلیٰ حضرت بولے جس نے لکھا ہے تحریف کیا وہی نہیں جانتا کیا لکھ دیا. اس نے کہا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لکھے وہی نہ جانے کی کیا لکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت بولے جاننا چاہے گا. تو بولے ہاں حضرت یہی تو حیرت کی بات ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ جو لکھا ہے وہی نہیں جانتا کیا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت بولے سن, بائبل کا جلد نمبر اتنا, پاٹ نمبر اتنا, سبق نمبر اتنا, لائن نمبر اتنا, سطر نمبر اتنا. ہائے ہائے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مانا رب نے تجھ کو یگانا, گایا جن نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. ارے کیا مقابلہ کرو گے اعلیٰ حضرت کا. اٹھا کے جتنے مولوی ہیں سب کو ایک طرف رکھ دو. اللہ کی عزت کی قسم جو میں نے جانا ہے وہ یہ کہ علامہ شامی ہے, ابن امام ہے, ملا علی قاری ہے. جہاں یہ خاموش ہوتے ہیں وہاں امام احمد رضا کی تحقیق شروع. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مستقے اعلیٰ حضرت. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. اتنی بڑی بڑی ذاتوں کے قلم جہاں رک جاتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے. اور میرے ذہن میں ہے بات ہے, لیکن ابھی بات لمبی ہو جائے گی اگر میں ادھر جاؤں گا. تو یہ سن لیجیے, وقت رہا تو وہ بھی بتا دیں گے. باب المیاہ سے تھوڑا پہلے در مختار, باب المیاہ سے تھوڑا پہلے ایک بحث چھیڑی ہے صاحب در مختار نے کہ قرآن افضل ہے یا آمینہ کا لال افضل ہے. یہ بحث انہوں نے چھیڑی اور بحث چلتی رہی, حل نہیں ہوا مسئلہ. بھیا حضرت چھیڑ تو دیا بحث کو, مگر میٹر حل نہیں ہو پایا. اس پر حاشیہ لکھا رد المحتار کے نام سے. تو حاشیہ کا مطلب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, حاشیہ کا مطلب ہوتا ہے عبارت میں اگر کوئی پیچیدگی ہو تو آپ بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہوا. یہی تو ہے حاشیہ کا مطلب. اور حاشیہ اگر متن سے زیادہ ہارڈ ہو جائے تب حاشیہ لکھتے ہو بھیا کتاب. آپ سنیے گا, یہ علماء جانتے ہیں, آپ تھوڑا کم سمجھ پائیں گے اس کو. تو رد المحتار کے نام سے حاشیہ لکھی گئی, اور رد المحتار میں
जब रद्दुल मुख्तार के मुसन्निफ अल्लामा शामी उस मौके पर पहुंचे तब वो बोले अत्तवक्कुफ़ु इंदी औला, मेरे नजदीक कुछ बोला भाई ना कर सहाबा नहीं कर, मेरे नजदीक खामोशी बेहतर है। अरे खामोशी बेहतर है तभी फैसला हल कौन करेगा? ये तो सबसे बेस्ट है कि नहीं ये कहो तो हल ही नहीं होगा। तो हमने कहा खामोशी का है, तो बोले मसला बड़ा नाजुक है, एक तरफ आमिना का लाल है और एक तरफ अल्लाह का कुरान है। क्या बोल दूं? कहीं थोड़ा बहुत अगर अनिश्चित खोटान अगर कोई ईमान जाने का खतरा, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो ईमान जाने का खतरा है। इससे बेहतर यह है यहाँ काबिलियत दिखाने का टाइम नहीं है, ईमान बचाने का वक्त। ठीक है, आप कहोगे कि हल नहीं किए, आप कहते रहो, हम तो ये सोच रहे हैं कहीं कुछ इधर उधर न हो जाएगा जहां ईमान जाने का खतरा हो। ये तो वो कह के चले गए अत्तवक्कुफ़ु इंदी औला, मेरे नजदीक खामोशी बेहतर है। दुर्रे मुख्तार पर हाशिया रद्दुल मुख्तार, मसला अभी तक हल नहीं हो पाया, तवक्कुफ कह के चले गए। उलमा की दो जमातें हो गई, कुछ कह रहे थे कुरान अफजल, कुछ कह रहे थे आमिना का लाल अफजल। जब जमाना आया इमाम अहमद रजा का, जब दौर आया बरेली के ताजदार का, जब दौर आया इमाम इश्क मोहब्बत का, तो आला हजरत ने उस हाशिए पर एक हाशिया लिखा जिस हाशिए का नाम है जद्दुल मुमतार। क्या नाम है हाशिए का? जद्दुल मुमतार, दुर्रे मुख्तार, हाशिया रद्दुल मुख्तार। उस हाशिए पर आला हजरत का हाशिया जद्दुल मुमतार। आला हजरत जब लिखते लिखते इस मकाम पे पहुंचे तब आला हजरत कहते हैं वल मसअलतु वाज़िहतुल हुक्म इंदी बेबरकते खिदमते कलिमातिकुम। ए अल्लामा शामी, आप तो कह दिए कि मसला बड़ा नाजुक है, मगर आप ही की खिदमत की बरकत से मेरे सामने मसला बिल्कुल रोशन है। मसला बिल्कुल वाज़ेह है। अब भी नहीं पढ़ोगे, माना जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अदलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। कहने दो मुहद्दिस दहलवी से जो बचा, अल्लामा शामी से जो बचा, इब्ने हुमाम से जो बचा, उसे पूरा किया है इमाम अहमद रजा ने। आला हजरत कोई आज के किसी एक मौलवी का नाम किसी आम आदमी का नाम समझ लिया है। नबी के मोजिज़े का नाम आला हजरत। अल्लाह समझ अता फरमाए। सोचते सोचते उम्र तो खत्म हो जाएगी, लेकिन यह नहीं जान पाएंगे कि एक फूल को कितना आ गया। अल्लाह समझ अता फरमाए। अब आला हजरत हल क्या करते हैं सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं मेरे नजदीक मसला वाज़ेह है। जो उलमा कहते हैं कुरान अफजल है वो भी ठीक कह रहे हैं, जो उलमा कहते हैं आमिना के लाल अफजल है वो भी ठीक कह रहे हैं। बोले कैसे? तो आला हजरत कहते हैं इन उरीद बिहिल किरतास वल मिदाद फहुवा हादिसुन व कुल्लु हादिसिन मखलूक। आला हजरत कहते हैं अगर कुरान से मुराद कागज लिया जाए, जिस कागज पे कुरान लिखा हुआ है, और वो स्याही ली जाए तो कागज भी हादिस है और स्याही भी हादिस है और हर हादिस मखलूक है और तमाम मखलूक में आमिना का लाल अफजल है। तमाम मखलूक में आमिना का लाल अफजल है। अगर कुरान से मुराद वो कागज लो जिस पे लिखा है तो उससे आमिना का लाल अफजल है। और कुरान से मुराद अगर कलाम इलाही लो जो अल्लाह की
सिफत है तो वो आमिना के लाल से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आला हजरत है इमाम इश्क व मोहब्बत। अल्लाह समझ अता फरमाए। अल्लामा शामी ने क्या कहा था, आला हजरत ने क्या कहा, देखिए एकदम हल कर दिया मसले को। तो आला हजरत बहुत बड़ी जात का नाम है। अभी एतराज करने तो क्या है, न जाने कितने एतराज किए और कहाँ चले गए, कुछ बह गए, कुछ के जने कहाँ गए, कुछ गायब हो गए, और इमाम अहमद रजा अभी तक चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी लड़ाई नहीं थी यार भाई, अपने लिए नहीं लड़े, जिंदगी फर्क है मुश्ताक, लड़ती रही तो सिर्फ मुस्तफा की इज्जत के लिए। आप बताओ, आला हजरत कहते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बोलो किसको कहा? अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। किसको बता रहे? कुदरत, नबी की कुदरत बता रहे। अपने लिए क्या किया है? अच्छा, अंधे नजदी बोले, क्यों? अब बोलो किसी और का नाम तो नहीं लिया, खाली है इतना हुआ का है किसी का, क्योंकि बिगड़ाई यही है, बिगड़ाई यही है, तो इसका नाम है। हमने आदमी से पूछा, मेरे आका आप कह रहे हो अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, मेरे आका जब वो अंधेरे है तो देखी का आप कह रहे हो अंधे नजदी देख ले। अरे बोलना ही तो यूं बोले होते, अखियारा नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तो हम कहते हाय अखिया का बिलगाई तब देखी। आप कह रहे हो अंधे नजदी, तो जब वो अंधेरे है तो देखेगा क्या, अंदाज तो देखेगा। या तो आप ये बोले होते कि आप जानते हो अंधा किसे कहते हैं? अगर या तो आला हजरत यूं कहे होते कि काना नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, तो हजरत हम समझते यक्कू वाला फ्यूज है, यक्कू नहीं देखेगा, दूसरे से देख लेगा, चलो कुछ तो देखेगा। मगर आप कहते हो अंधा नजदी, अंधा का मतलब जिसका दोनों वाला फ्यूज हो या वाला काम करे, तो जब वो दोनों फ्यूज है तो देखेगा क्या? हाँ, तो बेटर ये है, देखिए ये है आया हजरत। आंख कुछ भी देखे, आंख कुछ भी देखे, सर कितना भी बुलंद हो जाए, दिल में किसी की भी मोहब्बत आ जाए, कुछ भी देख ले आंख, अगर उसने अजमत मुस्तफा न देखा तो कुछ नहीं देखा, आंख नहीं है। दिल में कुछ भी आ जाए, अगर नबी की मोहब्बत नहीं तो वो दिल नारे तकबीर, सर नहीं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह समझ अता फरमाए। आ जाइए बस अपनी चौकी पे, वहीं जहां से मैं चला था। आला हजरत ने कहा सुनो, बोले हजरत ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो अपना लिखे अपना ही ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आला हजरत बोले जानना चाहेगा? बोले हाँ हुजूर यही तो समझना है। बोले सुनो, बाइबल का पेज नंबर इतना, सफा नंबर इतना, जिल्द नंबर इतना, लाइन नंबर इतना, उसमें लिखा है कि वो 32 साल की उम्र में बादशाह बना। कितने साल? 32 साल की उम्र में बादशाह बना। 8 साल तक हुकूमत की। कई साल तक हुकूमत की? 8 साल तक हुकूमत की। फिर वो मर गया, और जैसे वो मरा तो 32 और 8 कितना हो गया? 40। 8 साल तक हुकूमत की, मर गया। फौरन जैसे वो मरा, फौरन उसके बेटे को लोगों ने बादशाह बनाया, और जब उसका बेटा बादशाह बना तो वो 42 साल का था। उसमें लिखा है वो 42 साल का था। आला हजरत बोले अब तू बता कि जिस वक्त पप्पा 40 साल के बेटे हुआ 42 साल का, तू बता जिस वक्त बाप 40 साल का, उसी
वक्त बेटा 42 साल का कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अब्बा के आने के 2 साल पहले बेटा जी चला आए। यही तो मतलब हुआ। और ऐसा कैसे हो सकता है? ये अकल के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और मेडिकल साइंस के खिलाफ, सबके खिलाफ। ऐसा होता ही नहीं है। तो आला हजरत बोले बोल, या तो ऐसा हो रहा हो कि वो बेटा बोले हो कि अब्बा तू रुक जाओ चली 2 साल पहले 2 साल पहले हम जाते हैं। ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, तब अगर वो समझता ही होता क्या लिखता है, तब काहे ऐसा लिखता, तब काहे ऐसा लिखता। मैं जब देखा तो हैरान रह गया, वाह रे मेरे आला हजरत, ये उलमा बैठे हैं, जरा देखिए कुरान रोज पढ़ते हैं, एक आयत पूछ लो मगर जल्दी नहीं बता पाएंगे, हुफ्फाज रटे रहते हैं मगर अचानक अगर कोई टुकड़ा पूछ लीजिए तो देखना पड़ता है, जवाब नहीं दे मिलता है। शरह बकाया रोज पढ़ते हैं, सवाल कर लो तो हफ्ता भर लगता है, वो दूरी रोज पढ़ाई जाती है, सवाल कर लो तो देख के जवाब देना पड़ता है। इमाम अहमद रजा आप सब जानते थे, ठीक है, ये बाइबल कौन टाइम निकाल के आप पढ़े? बाइबल जब पढ़े थे आप, और कैसा पढ़े थे कि लाइन और पाठ और सतर कुल याद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। वही मैंने पहले बताया, पहले जो मैंने बताया किया कबूल ही नहीं करती। ये असल में कसब नहीं है, कसब से आदमी इतना हो ही नहीं पाएगा भाई, मेरे समझ से तो बाहर है। ये कसब नहीं, वहाब है, वहाब है, ठीक है, हाँ वहाबी है ये, अताई है ये, और खुद तो बोले अल अताया नबविया कहा है, अल अताया नबविया यानी मुस्तफा की अताए हैं जो जलवे दिखाई पड़ रहे हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो जिसके पास नबी की अताए हो, तब भाई कहते हैं ना कि जलक जेका जलक जला है ओकर का करे ओकर कोनो इलाज नहीं है भाई मेरे, उस कोई दवा ही नहीं बनी है। शेख सादी फरमाते हैं कि मर जाने वही एक इलाज है, बाकी कुछ इलाज नहीं। अल्लाह ताला हमें आला हजरत की मोहब्बत में जिलाए, आला हजरत की मोहब्बत में उठाए, बड़ी ऊंची शान है। अब बताइए सही और गलत, हलवा गोबर सब यक्के हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हमारे उलमा ने जो आज तक खिदमतें की हैं, मेहनतें की हैं, आला हजरत ने खूने जिगर दिया है सुन्नियत के लिए, उस सब पे पानी पर्दा डाल देना चाह रहे हो। अरे अभी इनके पीछे भी नमाज पढ़ लो, उनके पीछे भी नमाज। अरे जो उसूल है हमारे अकाबिर ने उसूल शरा बताया है, तरीके बताए हैं। अभी देखो हम लोग जब कहते हैं तो कहते हैं कि जो है अरे तो ऐसे बताओ, रज़विया जिल्द नंबर 3 में आला हजरत लिखते हैं कि वहाबिया की बुराई करना फर्ज है। सुभान अल्लाह, वहाबिया की बुराई करना फर्ज है। आला हजरत दिखा दूं, दिखा दूं, ये रखे हैं वो अभी देख रहा था कमरे में। क्या जिल्द नंबर 3 में असल में कोई मौलाना थे तो वो जब दुआ करते तो जब कहीं मतलब मान लीजिए दुआ करने में बात आ जाती वहाबियों की दुआ करते करते, तो ये खूब जम के दुआ उनकी बर्बादी के लिए। तो अब क्या हुक्म नहीं निकला वही में भैया, हाँ जैसे आज क्या हुक्म नहीं निकला वही तुम्हें पूछी कि बहुत दुआ करते हैं उनके लिए, ऐसा क्या क्या हुक्म है उनके लिए? हाँ या ऐसा भी हो सकता है कि जानकारी के लिए पूछे हो, लेकिन अंदाज ये बता रहा है ना ही निकला वाले। हाँ? तो पूछे कि हजरत ये बद्दुआ बहुत करते हैं वहाबियों के लिए, क्या है? तो आला हजरत ने कहा वहाबिया की बुराई करना फर्ज है, कौन दिक्कत है? फतवा रज़विया जिल्द नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब अगर कोई ये कहता है इसी पर हमारे बड़े उलमा रहे हैं, मुहद्दिस आज़म का अमल इसी पर, सदरुल शरिया का अमल इसी पर, शेर सुन्नत का अमल इसी पर, सदरुल फाजिल का अमल इसी पर, अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा इसी पर चले हैं। अब बोलो
अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, मसलके आला हजरत मुकम्मल मुस्तफा की इज्जत, अजमत, प्यार का नाम, प्यार करने का नाम। हाँ, और यही खत्म हो जाए तो जानो मसलके आला हजरत से हट गया। मसलके आला हजरत कोई अलग चीज नहीं है, बस मुस्तफा की इज्जत करो, नबी की ताज़ीम करो, नबी से प्यार करो, ईमान को मजबूती से अपने अंदर रखो। यही आला हजरत ने बताया, यही समझाया। अल्लाह समझ अता फरमाए। आप देखो, एक बात मैं आपको बता रहा था कि वहाबिया सबसे बिगड़ी हुई जमात और सबसे बिगड़ा मुर्तद है। अच्छा, आला हजरत ने कहा वहाबिया की बुराई करना फर्ज है, तो आला हजरत ने ये तो नहीं बताया कि वहाबिया की इतनी किस्में हैं, इनके बुराई करना ठीक है और इनका नहीं ठीक है। मुतलक आला हजरत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत कोई शिक तो इमाम ने कायम नहीं की। अब तू ज्यादा काबिल हो या उनसे ज्यादा दीन के हमदर्द हो। दीन के हमदर्द वो थे जो आज सुन्नियत चमक रही है। मेरे आला हजरत की देन है, आला हजरत दीन के सिपाही थे। आज जो शिकें निकाली जा रही है, ये कहीं ना कहीं शिक नहीं है, ये तबाही के रास्ते। अल्लाह ताला बचाए और जो बुजुर्गों ने बताया है उसी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि मेरा बाप जो कहता है उस पर चलो या मैं जो कहता हूं उस पर चलो। आला हजरत ने जो कहा है उस पर चलो, हमारे अकाबिर ने जो कहा है उस पर चलो। याद रखो, कुरान में आया ना, वैज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा गया कि जमीन में फसाद ना करो तो क्या कहते हैं, आलू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। हम तो इस्लाह कर रहे हैं। कुरान कहता है कि उनसे फसाद ना करो। फसाद मतलब लाठी चलावत रहे नहीं, ये नजरिया बिगड़े हुए थे, उनकी बड़ी बातें फैला रहे थे। कुरान ने कहा फसाद ना फैलाओ, तो बोले हम तो इस्लाह करने वाले। वही कुरान फरमाता वैज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों के पास आते तो कहते हम तो मोमिन हैं। देखो दो रंगी कुरान पहला पारा एकदम शुरू, मुनाफिकीन की हालत। इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब मोमिनों से मिलते तो कहते हम तो तुम्हारे भाई मोमिन हैं। वैज़ा खलो इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम व इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जब अपने शैतानों के पास जाते, बिगड़े हुए लोगों के पास जाते, तब कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम उनसे मजाक कर रहे थे। ये मुनाफिक समझ में आया। बाहर जाओ तो उनके वाली, यहाँ आओ तो इनके वाली। देखा ना कुरान से जब वो जाते मोमिनों के पास तो कहते हम तो मोमिन, और जब मुनाफिकों के पास आते तो बोले हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो बोलो ऐसा आदमी ठीक है? अरे हाँ, बिगड़ों से भी ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा हदीस में आया बाबुल कबाइर वन निफाक मिशकात में, मेरे आका ने फरमाया मसलुल मुनाफिक कशातिल आयरत बैनल गनमैन, मुनाफिक की कहावत उस उठी हुई बकरी की तरह है। कशातिल आयरत, उठी हुई बकरी की तरह है। बैनल गनमैन, जो दो बकरों के बीच में हो। मिशकात हदीस की किताब बाबुल कबाइर व निफाक में है, उठी हुई बकरी की तरह जो दो बकरों के बीच में हो। कभी इधर जाए तो कभी इधर जाए, उसका दिले ना भरे कि इधर जाऊंगी, इधर भी जाए उधर भी जाए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। यही हाल है मुनाफिकों का। अब जे यह मेर हुए का पता लगा लो। आला हजरत रामेश को मोहब्बत कहते हैं, नबी का गुलाम बन जा, ना इधर जाने की जरूरत ना उधर
صرف ایک دروازہ ہے، وہ احمد مختار کا دروازہ ہے۔ آمینہ صلی اللہ علیہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کی طرح یہوں جاؤ تو ٹھیک، وہوں جاؤ تو ٹھیک، وہاں تو کوئی بکرا نہیں ہے، نہ جانے کا بکرا ہے، کرو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو میں نے پہلے پڑھا، یہ حدیث کہہ رہی ہے، تو یہ انداز کس کا ہوگا؟ مومن جو ہوتا ہے، ارے آپ دیکھتے قرآن میں علماء کی توجہ تھوڑا سا ایک باریک گہرائی میں تھوڑا سا گھسنے کا ارادہ اب بن رہا ہے، لیکن آپ توجہ کریں گے تبھی کام بنے گی۔ یہ تو آپ دھیان دیں، کفر کی دو قسمیں، کیا کفر کی دو قسمیں، ایک کفر زائل، جو کفر کرتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے، اور ایک کفر ہے کفر ثابت۔ یہ کفر ایسا ہے کہ جب تک یہ کرو گے نہیں تب تک مومن ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ علماء نے اسے ایمان کا جز کہا۔ ایمان کے جز ہونے کا مطلب کامل ہی ایمان نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اب علماء نے کہا کیا کہا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہی جو میں کہہ رہا ہوں یہی قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہم نے جو قسمیں بتائی ہے اپنے گھر سے نہیں، میری اوقات کیا ہے جو میں بتاؤں گا یار، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ قرآن فرماتا ہے یہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا تاکہ انہیں عزت ملے، ہرگز نہیں، ان قریب ان کی عبادت سے پھر جائیں گے، انکار کر بیٹھیں گے اور ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی وہ جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، یہی وہ کفر زائل ہے، کافروں کا کفر، جو مرنے کے بعد وہ مطلب انکار کر بیٹھیں گے، بیزار ہو جائیں گے اس سے، جن معبودوں کو خدا بنایا تھا ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہ کفر زائل کافروں کا کفر ہے، مرنے کے بعد اس سے بیزار ہوں گے۔ اور ایک ہے مومن کا، ذرا سا دیکھیے کفر ثابت، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے، شیطانوں کے ساتھ کفر بمانا شیطانوں کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ قرآن میں آیا ہے جو شیطانوں کے ساتھ کفر کرتا ہے پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ آپ اندازہ فرماؤ یہ کفر وہ ہے، پہلے کہا گیا کفر کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر ایمان پہلے نہیں تھا، عبارت تو عربی کی قرآن کی یوں بھی ہو سکتی تھی، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، یوں بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ پر ایمان لاتا اور کفر کرتا، نہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت سے کفر کرتا، طاغوت کا انکار کر شیطانوں کا، اس کے بعد اللہ پر ایمان لا۔ ذرا انداز بیان دیکھو قرآن کا، پتا کیا چلا؟ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا، اللہ کو مان لینا صرف یہ ایمان نہیں ہے، شیطانوں کا، بتوں کا، معبودان باطلہ کا انکار کرنا ضروری ہے، تب مومن بنے گا۔ یہ کفر جو شیطانوں کے ساتھ کرنا ہے، یہ کفر ثابت، یہ ہر دم ضروری ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کے سامنے جا کر کے اللہ کے حضور جھکا، مسجد میں نماز پڑھی اور وہاں سے نکلا، پھر چلا گیا جا کر کے بت کے سامنے بھی سجدہ کر لیا، تو وہ لوگ مومن ہوگا؟ تو یہ وہی کہنا کہ یہ ہرو وہ ہرو، وہ بھائی کھلا جائے، یہ مزاج قرآن ہی نہیں ہے، یہ مزاج شریعت نہیں۔ ایمان اللہ پہ بعد میں لانا، پہلے شیطان کا انکار کرنا۔
शैतानों का इनकार कर। अब अगर ये अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि वहाबियों से दूर हो जाओ, तो यही मुजरिम है, यही तो मिजाज कुरान है कि पहले बुतों का इनकार, शैतानों का इनकार करो, फिर कहो मौला मैं ईमान लाया। ये दोनों जरूरी है, तभी ईमान मुकम्मल होगा। ऐसा नहीं कि इधर भी सजदा उधर भी, तब ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान ही नहीं होगा। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। यही तो बताना है कि ईमान के लिए वो जो सुलह कुल्लियत वाला मैटर नहीं है, ये नहू नीक, ए भैया यहाँ कहे तो कौन गलती है? ये देखो कुरान का यही मिजाज है कि नहीं है? कुरान का यही मिजाज है कि नहीं है? कुरान के अंदर और भी आया है, अलम तरा इलल लदीन तवल्लौ कौमन गज़बल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनहुम वला मिनहुम। महबूब आप नहीं देख रहे उनको जिनके पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया है, वो ना उनमें से है, ना इनमें से है, ना तुम में से। ए महबूब, ना वो आप में से है, ना उन्हीं लोगों में से। अरे ठीक है, उन आप में से नहीं है तो कम से कम वो हरिये हो जाते। बोलो है कि नहीं है? कुरान कह रहा है। ए महबूब, उन्हें देखिए जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया। अलम तरा इलल लदीन तवल्लौ कौमन, जो लोग उनसे दोस्ती रखते हैं, बदमज़हबों से, गलत लोगों से जो दोस्ती रखते हैं अकीदे के हिसाब से, वो ना उन्हीं में से है ना तुम्हीं में से। अरे ठीक है, दोस्ती रखते थे तो इनमें से नहीं उनमें से हो जाते, लेकिन कुरान कहता है कि उनमें से भी नहीं है और तुम में से भी नहीं है। वयहलिफून अलल कज़िब वहुम यअलमून, लेकिन जब तुम्हारे पास आएंगे तो कसमें खाएंगे, झूठी कसमें। अरे हम तो बड़े नीक हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बड़े प्यारे हैं और ये सारे मामले हैं, ऐसा मामला है, ये सब बातें, तमाम बातें वो अपना सब बातें बना करके कसमें खाएंगे। हालांकि ना वो तुम में से है ना उनमें से है। आप अंदाजा फरमाओ, तो जब ना तुम में से होंगे ना उनमें से होंगे, ये ठीक है? ना ये ठीक है कि ना उनमें से हो ना इनमें से हो, ना ये ठीक है और ना यही ठीक है कि उनमें से हो जाओ, ना उनमें से हो ना बीच में हो। दामने मुस्तफा में आ जाओ, दामने मुस्तफा में आ जाओ, दरे नबी पर आ जाओ, मसलके आला हजरत को थाम लो, ये सही रास्ता दिखाएगा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए, वहाबियों, दयाबना, देवबंदियों से, बदमज़हबों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा के बोलो, दूर रहोगे नहीं रहोगे? मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे नहीं रहेंगे? हाँ, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर जो है बातें बहुत सारी हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बहुत सारी बातें हो गई, 11 बज चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी तो बातचीत होगी। लेकिन थोड़ा सा एक मिनट, एक हवाला याद आ रहा है, किताब लिखी गई है जिसका नाम है शेर आलामी नोबाला। उलमा की थोड़ी सी तवज्जो। हाँ वो ठीक है। हाँ तो करिए। तो हाँ, आप सही बात बोल रहे हैं। यक्के बाजी कुल लेबो तो फिर हाँ, तो उलमा के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो जो है किताब मैंने जो हवाला दिया, शेर आलामी नोबाला किताब का नाम है, उसके अंदर रिवायत अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा, उसके अंदर भी रिवायत। दोनों किताबें मेरे पास, और दोनों पेजेस निकाल लेता हूँ पेज फटाफट, वो भी मेरे पास है,
वो दोनों मेरे पास, दिक्कत की बात नहीं है। उसमें लिखा हुआ है, एक जरा तारीख देखिए, इस्लाम और ईमान होता इतना आसान समझ लिया है आपने। जंगे बदर के मैदान में हजरत ज़ैद को मेरे आका ने भेजा कि जाओ साद बिन रबी के बारे में पता करके आओ कि क्या हाल है। आज जंगे उहुद के बारे में बोले कि जाओ साद बिन रबी के बारे में मालूम करके आओ कि उनका हाल क्या है, लड़ाई चालू। हजरत ज़ैद आए, ढूंढते ढूंढते जिंदों में तलाश किया तो नहीं पाया, मकतूलीन भी ढूंढने लगे तो बहुत देर तक नहीं पाए, लाशों को देखते हुए जा रहे थे, देखते जा रहे थे। तो एक जगह पर देखा, पहचाना हजरत साद बिन रबी जमीन पर हैं। ठीक है, जमीन पर है, आखिरी सांस चल रही है, अब दम निकले तब दम निकले। और इनका बयान है कि मैंने देखा सबऊन ज़रबा, उनके जिस्म पर 70 सख्त तलवारों के लगे। ये अरबी इबारत शेर आलामी नोबला की, तो 70 सख्त लग चुके थे। देखते भी आए, सर देखते क्या क्या किया है हमारे बुजुर्गों ने कि ये वहाबी जो कहता है कि नबी का इल्म गधों के बराबर है, जानवरों से तशबीह दिया है, कैसा ईमान है यार। यही उलमा बुरे हैं अगर आपको सही रास्ता बता देते हैं। उलमा की गलती है जो सच्चाई आपको दिखाते हैं, क्यों नहीं समझ में आता। उन्होंने लिखा कि नमाज में गधे का ख्याल आ जाए तो ठीक है, नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी। सिराते मुस्तकीम में है कि नहीं है? हम मुसलमान हैं, जो लिखी किताब में खुदा झूठ बोल सकता है, झूठ बोलना मुमकिन है उसका अगर ये रद्द करते हैं, कैसा ईमान है, काहे का मुसलमान। अगर इनका साथ नहीं दे सकते तो बुराई भी कर रहे हो। ये अपने लिए कौन सी बात कर रहे हैं? आपका ईमान बचे और आप मैदान महशर में सुरखरू रहो, जन्नत में जाओ, इसीलिए इनका मसला होता है। वरना आप क्या समझते हो कि आप ईमान ला करके किसी पर एहसान करोगे? कुल ला तमुन्नु अलैया वलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल। अल्लाह का एहसान है तुम पर कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, ईमान लाने की तौफीक दी। तुम क्या समझते हो कि तुम ईमान ला करके अल्लाह पर एहसान कर रहे हो? समझो भाई मेरी बातों को समझने की जरूरत है। वो अगर तुम अपने नबी से प्यार करते हो तो नबी को गाली दे और तकलीफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बाप को अगर कोई गाली दे, बेटा कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। बेटे को गाली दे, मारे तो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे बेटे और हमारे बाप मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है, सारी दुनिया की दौलत कुर्बान है। अब बोलो क्या गलत है इसमें? यही तो आपको बताया जाता है। हाँ, तो वही तो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, इनको समझने की जरूरत है। ये अगर समझ जाए तो सारा मसला। और हमारे कुछ जो अहले हक उलमा है वो तो माशाअल्लाह है ही, लेकिन कुछ लोग आलिमों में भी इधर उधर कर जाते हैं। तो ये भी अगर सही लाइन पे आ जाए तो आप कैसे नहीं सुधरोगे? और आप इनकी इज्जत करना सीखो जो उलमाए हक बताते हैं। आपको गलत नहीं बताते हैं, वो सही बताते हैं। ये सब बातें आपको जानने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। तो तवज्जो फरमाइए, इस्लाम ऐसे नहीं आप तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। आप बताओ, आप ही के जैसे अगर रिवर्स होने वाले होते और मसलहत को सलाम करने वाले होते, आज जैसे कुछ उलमा कर जाते हैं, कुछ आलिम कहलाने वाले जो मतलब सुलह कुंडी करी वो कर जाते हैं, या कुछ पीर के लिबादे में कर जाते हैं। अगर ऐसा ही करना होता तो मैदान करबला में अली अकबर शहीद नहीं होता। बात कितनी थी, आप क्यों नहीं समझते? कितनी सी बात थी, बात कितनी थी, बयान करो। कितनी सी बात थी, बयान करो।
کیا امام اعظم نے یزید کو کافر کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. فاسق، گنہگار، فلا فلا سب کچھ کہا ہے. بات تھی بیعت پر. امام نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. علی اکبر کٹ گئے. عباس علمدار کا بازو قلم ہو گیا. 6 ماہ کا بچہ قربان ہو گیا. پورا گھر قربان کر دیا گیا. عورتیں پاکیزہ عورتوں کے سروں سے چادریں تطہیر چھین لی گئی. اسی کربلا کی دھرتی پر امام حسن کی یادگار حضرت قاسم کو لوٹ لیا گیا. کربلا کی دھرتی پر کیا بیعت نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، مگر یاد رکھ اگر بیعت کر لیے ہوتے تو اسلام کا یہ چہرہ دکھتا ہی نہیں جو آج دکھائی دے رہا ہے. آج تو فخر سے سر اٹھا کے کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم دین والے ہیں. یہ صورت نہیں دکھائی پڑتی. ہمارے بڑوں نے تو گھر کا گھر لٹا دیا اور تو مصلحت کو سلام کرنے چلا ہے. مصلحت کو سلام کر رہا ہے. قدم میں تزلزل پیدا ہو رہا ہے. یاد رکھ دین اتنا آسان نہیں ہے. دین آسان ہے بھی مگر اتنا بھی نہیں ہے کہ ادھر بھی جاؤ میں بھی ملو اور صحیح لوگوں میں بھی ملو. یاد رکھو ہمارے اکابر نے گھر کا گھر لٹا دیا تب دین یہاں تک پہنچا ہے. ہم اسے اپنے سینے میں محفوظ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر حسین کا غلام بن کے جنت میں جانا ہے تو وہابیوں سے دور ہو جاؤ، رافضیوں سے دور ہو جاؤ، دیوبندیوں سے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. بولو یہ باتیں اب بھی اگر دل میں نہ اترے آپ کے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کربلا میں کیا نہیں ہوا آپ سنتے رہے. اتنی سی بات اگر دیکھا جائے تو بیعت کی بات، لیکن وہ اتنی اہم بات تھی کہ اگر وہی کر لیتے تو سارا چہرہ ہی کچھ اور ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اتنی سی بات ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر نے اپنا خون جگر دیا ہے. تو بات یہ چل رہی کہ حضرت سیر و عالمی نوبل 70 زخم لگ چکے تھے. میرے آقا نے سید سے کہا کیا تھوڑا سا دیکھ کر کے آؤ، دیکھ کر کے آؤ کہ حالت کیسی. سعد بن ربی کی حالت کیسی. ہاں ٹھیک ہے دیکھ کے آؤ سعد بن ربی کی حالت کیسی ہے. جب پہنچے تو 70 زخم لگ چکے تھے. جس کے جسم پہ 70 زخم لگے ہو سوچیے آپ. یہ کہہ رہے میں نے دیکھا تو آخری سانس چل رہی تھی. زندگی کی نئی ہچکولے کھا رہی تھی. اب ڈوبے تب ڈوبے، اب ڈوبے تب ڈوبے. رمق زندگی کی آخری تھی. اب سانس کی ڈوری ٹوٹے تب ٹوٹے. یہ پہنچے، انہوں نے پہچانا اور بولے اے سعد بن ربی مجھے آمینہ کے لال نے بھیجا ہے تیرے پاس. آئے آئے ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بول. بولے اے سعد بن ربی مجھے آمینہ کے لال نے بھیجا ہے اور آمینہ کے لال نے کہا ہے کہ جا کے سعد کو میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آنکھیں بند تھی، سانس کی ڈوری ٹوٹنے والی تھی. جب محبوب کا نام آیا اور محبوب کا سلام آیا دیوانے کی آنکھیں کھلتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے. سبحان اللہ. چہرہ چمک اٹھا، دیوانے کی آنکھیں کھل گئی. آپ دیکھو ذرا، کہتے ہیں نا مصطفیٰ کا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سن لے زید، سن لو میرا کہنا یہ ہے کروں تیرے نام پہ جا نہیں ایک جا دو جہاں پیدا نہیں، اس سے بھی میرا جی بھرا. کروں کیا کرو جہاں نہیں، ہزاروں جانے ہو تو قربان کرتا ہوا چلا جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھو اسلام کیا ہے اور کس طرح سے تاریخیں ہوئی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. صحیح بات
माना करो मेरे भाई, कोई अपने लिए नहीं बताता है। ये पूरी दुनिया देख लो, सारा हिंदुस्तान देख लो, हिंदुस्तान के कोने कोने पर नहीं, दुनिया के कोने कोने में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर इमाम मोहम्मद रजा का नाम चमका है। सुभान अल्लाह, उनकी जात चमक रही है। हक माना करो, हक मानना चाहिए, सच्चाई माननी चाहिए। सुनो, अब वो जो है बोले, आपको अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है और मुझे आपकी हालत देखने के लिए भेजा है। पैगंबर ने ये कहा है कि पूछ लेना कि ए साथ कैसा लग रहा है तुमको, कैसे महसूस कर रहे हो तुम। हाय हाय हाय, जरा देखना 70 जख्म तलवारों के लग चुके हैं, ऐसे में कोई बोलेगा क्या? लेकिन जब महबूब का नाम आता है ना तो जिंदगी ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है, जान आ जाती है। साद बिन रबी ने कहा, ए ज़ैद जाके कह देना मेरे महबूब से, इन्नी आजे दो रीहल जन्नत। सुभान अल्लाह, हमारे उलमा इन्नी आजे दो रीहल जन्नत। ए ज़ैद जाके आमिना के लाल से मेरे महबूब से कह देना, मेरे आका मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखिएगा, कहते हैं ना तैबा, कहते हैं कि गर वक्त अगर सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, नबी की मोहब्बत को लेकर के जा, जन्नत की खुशबू तो आनी आनी है। बोले अब जरा देखिए, कहते हैं मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जाके बता देना। और एक ये तो मेरे आका मेरे महबूब से बता देना, और कौमे अंसार जो नबी के साथ में है उनको जाकर के मेरा एक पैगाम दे देना। हाय हाय हाय, उनके लिए एक पैगाम है, उनको जाके बता देना। कुल कौमिल अंसार, जाके मेरी कौमे अंसार जो है उनसे कह देना, क्या कह देना, ला उज़रा लकुम इन खुलिसा इला रसूलिल्लाह व फीकुम शुफरुन यकरफु। जाके बता देना कौमे अंसार से, ला उज़रा लकुम इन खुलिसा इला रसूलिल्लाह व फीकुम शुफरुन यकरफु। जाके ये बता देना कि तुम्हारा कोई उज़्र मैदान महशर में नहीं सुना जाएगा, कोई उज़्र मैदान महशर में नहीं सुना जाएगा। अगर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंच गई, इज्जत पे हमला हो गया, और अगर तुम में का एक भी जिंदा है तो उससे पूछा जाएगा तेरे होते हुए नबी को तकलीफ हुई? सवाल किया जाएगा, उज़्र कुछ भी नहीं सुना जाएगा। जाके मेरी कौम को बता देना, मैंने कहा ए मेरे आका साद इब्ने रबी अब्दुर्रहमान की जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, ये खादिम आपके कदमों पे कुर्बान, इसकी 1000 जाने आपके कदमों पे कुर्बान। आप ये पैगाम दे रहे हो कि अगर एक भी जिंदा है और नबी की असमत पे हमला हो गया तो मैदान महशर में उज़्र सुना नहीं जाएगा। ए मेरे आका क्यों नहीं सुना जाएगा? अगर एक है और बाकी कोई मानने वाला नहीं है, तो जब अजमत पे हमला होगा तो वो अकेला एक क्या कर सकता है? वो उज़्र क्यों नहीं कर सकता कि ए मेरे मौला मैं अकेला था, मैं क्या करता? सबके सब मुखालिफ थे, कोई अपना नहीं था, एक मैं था तेरे महबूब का दीवाना। तो जब सारी दुनिया एक तरफ थी तो मैं अकेला क्या कर सकता था? मेरा उज़्र कबूल कर ले, लेकिन साथ कहते नो, ये उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। जाके बता दो, अगर एक जिंदा है तो उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। हमने कहा क्यों? कहा जब ये उज़्र पेश करेगा तब वो मौला कहेगा तू जिंदा ही क्यों रहा, तुझे जीने के लिए जिंदगी नहीं दी थी, महबूब के कुर्बान होने के लिए जिंदगी दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोल रहे हैं ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का मिजाज। हाँ? अब हमारे उलमा अगर रद्द वहाबिया कर दे, हाँ? तो उलमाए हक तो ये सब करते ही हैं। हाँ? कुछ लोग अपना ही कहलाने वाले वही गड़बड़वा हाँ? है ना? हाँ, वही गड़बड़ाते हैं। हाँ? अच्छा, वो हाफी आकर के कुछ नहीं कर सकता है। हाँ? हाँ? हाँ, सब जानते हैं। आला हजरत फतवा रज़विया में फरमाया दुनिया के पर्दे पर कोई वहाबी ऐसा है ही नहीं है आज जो इंदल फुक़हा काफिर ना हो। इंदल फुक़हा काफिर ना हो। हाँ, अब आज इतना जमाना हो गया, आज में क्या हाल है और कुछ छुपा रखा है। हाँ? अच्छा ये बताओ, 100 साल के बाद खुलबई क्या हुई कि ना हुई? खुलबई क्या हुई ना? जब इतने लोग बोलने वाले हैं, हाँ? तब कहाँ कुछ हुआ? अल्लाह ताला इनके शर से तो मामून फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद, जमीन में फसाद ना करो, नबी के दामन में आ जाओ, नबी के दामन रहमत में आ जाओ और मेरे आका की गुलामी में आ जाओ। वहाबियों से दूर हो जाओ, देवबंदियों से दूर हो जाओ, बदमज़हबों से दूर हो जाओ। इनसे दूर रहने ही में भलाई है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नहीं तो धीरे धीरे जाकर के गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। ये उलमा जो रोक रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रोक रहे हैं। हाँ? सुलह कुल्ली ये कहता है कि जो है क्या करोगे। अभी इससे पहले जब मैं आया था जलसे में, तो हमने बुखारी शरीफ की एक रिवायत दी थी, जी जी, फतहुल बारी और बुखारी के हवाले से। उसमें क्या हुआ था जानते हो? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओबय अब्दुल्ला बिन ओबय के महल्ले से गुजरे थे। बुखारी में फतहुल बारी तो बुखारी की शरह तो बात रहेगी। तो अब्दुल्ला बिन ओबय के महल्ले से मेरे आका जब गुजरे, ये आप जानते होंगे, मैंने बताया था। तो उसने कहा कि लक़द आज़ानी नतनु हिमारे, आपके सवारी की बदबू ने मुझे तकलीफ दे दिया। आपकी सवारी की बदबू ने मुझे तकलीफ दे दी, आपके हिमार की बदबू। ये बुखारी के अल्फाज। अच्छा, जब इसने ये कहा, अब देखो सुलह कुल्ली मिजाज रखने वाला ये कहेगा, अब उससे कहो, अभी देखो उलमा ने कहा ना माज़ल्लाह, सुलह कुल्ली मिजाज वाला ये कहेगा कहो इतनी बड़ी बात है, सवारी के लिए कहा, सवारी के हिमार, इतना काहे नाराज हो जाते हो? इतना क्यों गुस्से में आ जाते हो? आप लोग तो जलाल में आ जाते हो। वो तो सवारी के लिए कहा, सुनिएगा बात। लेकिन वही एक सहाबी, सुभान, हाँ, वो देखो बोले कि वहाबी नहीं थे। अरे वहाबी तो छोड़ो, सुलह कुल्ली नहीं थी। सुलह कुल्ली होते तो चुप रहते। चलो आप चलो, आप चलिए। सुलह कुल्ली होता तो ऐसा बोलता, ऐसा बोलता। वही एक सहाबी थे बुखारी शरीफ, वो जब दिखाया था मैं लेके आया था, उसी वक्त का मैंने फोटो लिया है। अब भी फतहुल बारी, बुखारी और तफसीर जलालैन कुल मोबाइल पे, वो सारे पेजेस हैं, आप देख सकते हैं। तो सहाबी खड़े हुए और बोले, क्या बोला? क्या बोला? मेरे रसूल के सवारी को बोला कि उसकी बदबू ने मुझे तकलीफ दिया। ये कह रहे हैं वल्लाह लहिमार रसूलिल्लाह
अतियब भी हम इनका अल्लाह के इज्जत की कसम सरकार की सवारी तुझसे ज्यादा खुशबू वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार का हिमार तुझसे ज्यादा खुशबू वाली है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जवाब दिए, यही तो जवाब दिए थे जिनको याद हो गया। अब हमने कहा कि हजरत आपको क्या जरूरत थी जवाब देने की? उसने कह दिया था चलो सरकार की तौहीन नहीं की, सरकार से निस्बत रखने वाली एक शय की तौहीन की। तो आपको इतना नाराज नहीं होना चाहिए था, सरकार को तो कुछ नहीं कहा था। और अगर आपको गुस्सा आया ही था तो उसने कहा था कि सरकार का हिमार, उसकी बदबू ने मुझे तकलीफ दिया। आप वहीं खड़े हो जाते और आला हजरत ने अपनी जबान में कहा था, आप अपनी जबान में कहते क्या महकते हैं महकने वाले, भू पे चलते हैं। आप अपने हिसाब से कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अपने हिसाब से कहते, नबी की तारीफ करते, आप बोलते सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने कहा सुनो, नात पढ़ने का मकाम और है, यही तो समझना है। नात पढ़ने का मकाम और है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, जब तक चाहेंगे तब तक बारगाह मुस्तफा में नात पढ़ते रहेंगे। लेकिन अब नबी के इज्जत पर हर्फ आया है, अब नात नहीं पढ़ेंगे, अब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नात नहीं होगी, उसका जवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ भी होगी और जवाब भी होगा। जवाब देना जरूरी है, खाली इस बाती पहलू नहीं, सवाल का जवाब होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि अरे कहाँ तुम उनको वहाबी का नाम लोगे जब तक दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। देखा तो भैया, अरे भाई दरूद शरीफ रात दिन पढ़ते रहो, उससे बेहतर वजीफा नहीं। ये क्यों ला रहा है बीच में? ये कर मतलब कहूँ ना कहूँ गुड है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चोरी यही पकड़ी जाती है। अरे भाई कौन कह रहा है दुरूद न पढ़ो, उससे बेहतर वजीफा नहीं पढ़ते रहो। मगर तुम्हें यही याद है कि जब तक वहाबी को वहाबी कहेंगे तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। ये सब गड़बड़ी की बात है। अल्लाह ताला हमें वहाबियों की शर से महफूज व महफूज फरमाए। जानते हो फिर क्या हुआ? जब इन्होंने ये कहा तो उधर से एक ने गाली दी सहाबी को, इधर से भी खड़े हुए कुछ बोले, फिर उधर से दो चार खड़े हो गए, तो खाली खड़े नहीं हुए, फकाना बैना हुआ सर बुखारी में आया। अरे जब बात में बात वही हुई, आदमी यहाँ से चार आदमी उधर से दोनों तरफ से खड़े हुए, और उसके बाद बात जब बड़ी फकाना बैना हुआ सर्व, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक, बिल ऐदी वन्याल शरीर, डंडा, हाथ, लाठी, लात, कुल से मारपीट हुई। बात कितनी थी? आज ये कहते हैं कि जलाल में आ जाते हैं। देखो बुखारी मेरे पास है, और अगर इस पर इत्मीनान नहीं तो आप लाओ, हम दिखाते हैं। किताब आपके यहाँ से नहीं दिखाऊंगा मैं। तो ये सारा मसला है। बात नबी की अजमत की थी और सहाबा में मारपीट हो गई। अब जब अहले सुन्नत के उलमा को जलाल आता है तब कहते हैं ये तो बहुत झगड़ालू है, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं। इनका जलाल में आ जाना सहाबा की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है। हाँ, ये हरदम ठंड रहा था वह जानो की ठंड ना है, इनके वह ठंड है, ईमान ही ठंड है, वो है ही नहीं, गड़बड़ है, तभी सारा मसला है। वरना कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए,
शहीदों की क्या मोहब्बत की, ये पैगाम मेरे आला हजरत ने दिया है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। ये बुखारी में है, हदीस का ऐसा मामला है, ये बातें हदीस में आई और नबी के जमाने में, बल्कि यूं कह लीजिए मेरे आका जा रहे हैं, नबी के सामने ऐसी बातें हुई। उसके बाद कुछ नहीं, मेरे आका को कहना चाहिए ये तुमने अपने आप से काहे फतवा दे दिया? हाँ, मेरा जमाना आज भी है, लेकिन मैं जाहिरी हयात में हूँ। मेरे पास आते मुझसे पूछते कि अगर कोई आपकी सवारी को ऐसा कह दे तो क्या हुक्म है? ये तुम जवाब बना भी लिए, जुमला सेट भी कर लिए, जवाब भी दे दिए, ऐसा कैसे? जब ये पूछा गया तो आवाज आई है, अगर नबी के दर तक जाने की देर लगाता तो ईमान के का क्या होता है? सुभान अल्लाह। कोई और मैटर होता तो जरूर वहां जाता। मेरे महबूब की इज्जत का मैटर था, महबूब के अजमत का मैटर था। और सुन ले ए अब्दुर्रहमान, सुन ले तू, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से ताज़ीम भी करता है। नजदीक तो मरे नजदीक तो मरे दिल से। मोमिन वही है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है, नजदीक तो मरे दिल से। ये करता भी है, ये करता तो है ही नहीं है। कहीं कहीं फंस गया या परेशानी में आके कभी किया तो अब जब जा ही नहीं है तो मरे दिल से ऐसे खड़ा हो गए कि सब सुननी है, कहूँ मारे ना। ताज़ीम भी करता है, नजदीक तो मरे दिल से। अल्लाह ताला हमें इनके शर से महफूज व मामून फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जोर से बोलो, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अच्छा, वहाबियों के साथ मिलकर आला हजरत ने फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 में मुस्लिम और कुछ और दूसरी हदीसें टुकड़े टुकड़े करके सबको इकट्ठा कर दिया आला हजरत ने, जिसमें बताया ला तुसल्लु माहुम वला तुसल्लु अलैहिम, ला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम। ये पूरी हदीस जो कई हदीसों के टुकड़े हैं आला हजरत ने जमा किया है एक जगह पर कि उनके साथ खाओ नहीं, उनके साथ उठो नहीं, उनके साथ बैठो नहीं, उनके साथ निकाह ना करो, मर जाए तो नमाज़े जनाजे में उनके जनाजा में शिरकत ना करो। ये आला हजरत ने हदीस नकल की है और ये सारी बातें आला हजरत ने बताई है। उनके साथ खाना हराम, पीना हराम, उठना हराम, बैठना हराम, जनाजे में शिरकत हराम। ये सारे मसले वाज़े से वाज़े हैं और बार बार आपको बताया जाता है। याद रखो, कब्र में भैया कोई नहीं जाएगा। जिनको आप दोस्त और साथी बना रहे हो ना, जिनके लिए जाके अपना सफर बिगाड़ रहे हो, वो नहीं जाएंगे। कब्र में अगर कोई काम आएगा तो अहमद मुख्तार काम आएगा, आमिना का लाल काम आएगा। तो वही उन्हीं का तो फरमान है कि ये मेरे दुश्मन है, अल्लाह और रसूल के दुश्मन है, इनसे दूर रहो। आप उनके साथ उठो बैठो, खाओ पियोगे और उसके बाद कहोगे कि हम न सच्चे पक्के सुन्नी है, बालो बोलो। ये बात समझ में आती है? यही सब गड़बड़ियां हैं। शादी ब्याह में ना दावत हो भैया और ना उनके दावत में जाओ, ठीक है? ना उठो ना बैठो ना नमाज़े जनाजा में उनके शिरकत करो। हाँ, ये सब शरीयत हराम कह रही है, शरीयत मना कर। वो मुर्तद है। बात वही फिर के आती है कि वो कहते हैं अल्लाह झूठ बोलना अल्लाह का मुमकिन, माज़अल्लाह नबी की तौहीन करते हैं। तो जब अल्लाह और रसूल की तौहीन करते हैं तब कौन सा धर्म बचा? आप बताओ। वो दीन धर्म तो अल्लाह ही का दिया हुआ है, अल्लाह और रसूल का दिया हुआ, और उसी की तौहीन कर दे तो बचा क्या? तो अब उनके साथ उठना बैठना सब आला हजरत ने मना किया है। आला हजरत ने मना किया और आला हजरत ने खुद नहीं मना किया। यही शरीयत जो आला हजरत ने कहा, जो मसलके आला हजरत है वही दीन है, वही शरीयत है। इसलिए इनसे दूर हो जाओ, इनके करीब ना जाओ। याद रखो, कहते हैं ना। अच्छा, एक बात सुन लो आप, आदमी समझता नहीं हजरत, बताओ मैं आपको।
गोबर देखे हो, गोबर, हाँ? ओपला की क्या बोलते हैं इधर? हाँ, हमारे इधर बूढ़ा बस्ती में गोबर, हाँ? गाय, भैंस, इनके निजात को गोबर कहते हैं। मौलाना रूम ने एक शेर में कहा कि गोबर का कीड़ा अगर गुलाब की तरफ है, हाँ गोबर नहीं है, गोबर का कीड़ा अगर गुलाब की तरफ लपके तब समझ लो कि वो गुलाब है ही नहीं। क्या बात है। अगर गोबर का कीड़ा गुलाब की तरफ जाए तो आप समझ लो कि वो गुलाब है ही नहीं। गुलाब ऐसा महकने वाला, खुशबूदार, और उसकी तरफ गोबर का कीड़ा कैसे लपकेगा भाई? इसलिए कि जो जहां रहता है उसको वही पसंद है, उसी में वो रच बस जाता है। तो जैसे आपको बदबू बुरी लगती है वैसे उसको खुशबू बुरी लगती है। तो गोबर का कीड़ा अगर गुलाब की तरफ लपके तो आप समझ लो कि वो ओरिजिनल गुलाब है ही नहीं, वरना वो उधर जाता ही नहीं। ऐसे ही कोई सुन्नी मामूली समझते हो सुन्नी को? सुन्नी है क्या? सुन्नी कोई वो डुप्लीकेट माल नहीं है, ये खरा सोना है। सुभान अल्लाह, ओरिजिनल माल है, खरा सोना है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या बोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। और खरा सोना इसलिए कि सबसे अनमोल सोना, सबसे अनमोल दौलत नबी की मोहब्बत इसके सीने में है। तो इतना अनमोल चीज अब अगर वहाबी की तरफ जाए और दोस्ती करना चाहे तब यह लागत है कि सही मालूम जोन है, जैसे वह गुलाब न हो तैसे गड़बड़ है, गड़बड़ है। और ये मौलाना कह लीजिए, मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम हैं। अगर इन्होंने अपनी बात कही जो कही वो तो ठीक है, मगर कुरान भी तो कुछ ऐसा ही जहन दे रहा है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआतून मन हाद्दल्लाह। ऐसा ही जहन तो कुरान भी दे रहा है। तुम नहीं पाओगे वो लोग जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, उन्हें उनसे दोस्ती करते जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, उन्हें उनसे दोस्ती करते तुम नहीं पाओगे। यानी मोमिनों को अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते, ये कुरान कह रहा है ना। हाँ, जो मोमिन है उनको अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते ना पाओगे, ना पाओगे। जुमले पे गौर फरमाइए, ला तजिद, ना पाओगे। अब अगर कोई मोमिन कहलाने वाला हम में से उनसे दोस्ती करे और दिखाई पड़े तो दोस्ती कर रहा है, तब आप सोचो कि कुरान ने तो कहा है कि ना पाओगे, ना पाओगे। तभी कैसे पावा गए? कुरान ने कहा ना पाओगे, तब आप समझ लो कि ना पाओगे मतलब ना पाओगे। जो दिखाए तब वो होबे नहीं करेगी, वो सही होंगे ही नहीं, इसलिए कि जो दिखे वो कुरान का फैसला गलत नहीं हो सकता। कुरान ने कहा नहीं पाओगे। जो मोमिन होगा वो अल्लाह और रसूल के दुश्मन से दोस्ती करते उन्हें नहीं ना पाओगे, वो नहीं करेंगे। अब अगर कोई ऐसा दिखता है तो यही कुरान ही का मफहूम निकल गया कि वो मोमिन सही मालूम नहीं, समझ गए? तो ये खाली मौलाना रूम की बात नहीं, कुरान भी तो यही ज़हन दे रहा है। और यही उलमा बताते हैं, हक माना करें मेरे भाई, अपने लिए कोई नहीं कहता। अगर आप सही
सही बातों को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे, जहां आप जन्नत में जाएंगे तो आपके सदके में, बताने के सदके में हम भी जन्नत में चले जाएंगे, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, दोनों का भला होगा। अल्लाह समझ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अच्छा वक्त थोड़ा ज्यादा, अच्छा 2 मिनट की बात हो, वक्त ज्यादा हो रहा है, 11:15 बज चुके हैं। सुनो, पीर जो है, पीर आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। सरकार गौसे आदम के बारे में फरमाया। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि उनसे पूछा गया कि ये बताओ मुरीद किसे कहते हैं और मुराद किसे कहते हैं, शायख किसे कहते हैं, मुरीद किसे कहते हैं। तो कश्फुल महजूब नाम की किताब हजरत दाता गंज बख्श, उसका मुताला कर रहा था मैं, उसमें पूछा गया कि मुरीद किसे कहते हैं, शायख। तो बोले अल मुरीद यतलुब व शायख यहरब। मुरीद वो है जो तलब करे और शायख वो है जो भागे। शायख वो है जो भागे। अरे चलो आप बात मुरीद कर लेंगे, और मुरीद कहे नहीं सरकार, हमें तो आपके कदमों पे कुर्बान होना है। मुरीद तलब करे और शायख भागे, तो वो शायख होता है। और आज का हाल क्या, मुरीद भागत है, शायख खदेरत। वो भाग रहे, अरे नहीं महक मुरीद, अरे आओ उन्हें लेके आओ, आप चला जाओ। ये है शायख। तो मैं क्या बताऊं आपको, शायख तो बहुत गुजरे हैं, पीर तो गौसे आजम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, मुतसर्रिफ फिल वजूद अला तहकीक, शायखुल जिन्ने वल इंसे वल मलक बिल इत्तेफाक। गौसे आजम पीर थे कि नजर अगर उठा दे तो जिंदगी की काया पलट जाए, एक घड़ी में, मिनटों में तकदीर आदमी की बदल। वो गौसे आजम ठीक। परेशान हाल कितना पहुंचे हजरत, कितने परेशान हाल पहुंचे गौसे आजम की बारगाह। परेशान हालों पहुंचे और कुछ लोग चरौरू पहुंचे, कुछ लोग चोरी करने पहुंचे, कुछ तो जो चोरी करने पहुंचे वो हम खाली नहीं लौटे। हाय हाय हाय, पीर ऐसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान हाल पहुंचे। गौसे आजम के बारे में जानते हो आप, लिखते हैं कलाइदुल जवाहिर नाम की किताब। इनके बारे में बहुत सारी किताबें हैं। अभी हजरत उलमा किराम थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं बंद करने वाला था, बस 2 मिनट है। वो कलाइदुल जवाहिर और नुज़हतुल खातिर अल फातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, नुज़हतुल खातिर लिल मुल्ला अली अल कारी, उनकी किताब थी। तबरीउल खातिर है, नुज़हतुल खातिर है, और तोहफ़े कादरिया है, और अभी क्या कलाइदुल जवाहिर का हवाला दिया, नूरुन नाज़िर, रौज़तुन नाज़िर, ज़ुब्दतुल आसार, फुतूहुल गैब। ये सब किताबें सरकार गौसे आज़म के ताल्लुक से थोड़ा बहुत मुताला कर लिया है मैंने। ये उलमा की खिदमत की बरकत से, उनकी दुआओं की बरकत से थोड़ा बहुत देखा है किताबों को। जरा सा उसमें से कुछ लेना चाहेंगे? कलाइदुल जवाहिर में लिखा है सफा नंबर 15 पर, अरबी कलाइदुल जवाहिर सफा नंबर 15। उसमें सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में और मैं मगरिब में रहूं
और वहां उसका सत्र उसके खुल जाए, तो मैं मशरिक में या मगरिब में रह करके वहां उसकी सत्रपोशी कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मेरा साया मेरे मुरीदों पर ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। पीर ऐसा होना चाहिए। आज पीर साहब है कि 6 महीना पूछते नहीं है कि तुम मरी गए कि जिंदा हो। ख्याल ही नहीं आता है। शायद ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। वलमाए हक और शायद जो हक है, हक्कानियत की तबलीग करते हैं, मसलक आला हजरत पर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत उलमाए अहले सुन्नत की जो मसलक आला हजरत के रास्ते पर काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको दारैन की नेमतों से माला माल करे। वो पीर जो खाली मुरीदी में लगे रहते हैं कि बढ़े और पैसा बढ़े, ऐसों के करीब मत जाइए। पहले आप टटोलिए शरीयत पे है कि नहीं है, मसलक आला हजरत के है कि नहीं है, मसलक आला हजरत पर इनकी पाबंदी है कि नहीं है। अगर मसलक आला हजरत पर पाबंद है तो फिर वो कोई भी हो हमारा मसलक आला हजरत का है। और अगर मसलक आला हजरत माला नहीं है तो मसलक आला हजरत ही दीने हक है, मसलक आला हजरत ही दीन है। उससे हटा तो दीन से हट गया, समझ गए, फिर वो हमारा नहीं है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए। तो ये जो पीर गांव गांव घूम रहे हैं ना, ये वो वाले पीर हैं। हमारे इलाके में हजरत आते हैं, तो ये एक महीना रहा, लोग चावल दाल ले जा करके देते हैं, अपना वो रहते हैं और फिर आराम से फिर जाते हैं। तो 1 महीना रहो चाहे 6 महीना रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मसलके आला हजरत बोलो, सही है नहीं सही है, मसलके आला हजरत पे रहो, क्योंकि मसलके आला हजरत भी हक है, यही दीन है। इससे हटा अब चाहे जितना लंबा बाल रखाए लो, चाहे जवनियर जुब्बा पहन लो, तो कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, यही हक और यही सच है। यही हमारे बुजुर्गों ने बताया है, यही हमारे अकाबिर ने रास्ता दिया है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। देखो मसलके आला हजरत क्यों कहा जा रहा है, मसलके आला हजरत से हटे तो गौसे आजम से भी हट जाओ। इसलिए कि उन्होंने आला हजरत ने जितना बुजुर्गों में तारीफ और मनकबत गौसे आजम की है, शायद किसी और की न की। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। सफा नंबर 15 के 3 या 4 लाइन में है कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम के दारोगा मालिक से पूछा, जहन्नम का दारोगा मालिक, उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे अंदर मेरा कोई मुरीद भी तुम्हारे अंदर मतलब जहन्नम के दारोगा से जहन्नम है, कोई मेरा चाहने वाला भी है उसमें। कलाइदुल जवाहिर में है। तो दारोगा जहन्नम का मालिक क्या कहता है, हुजूर आपके चाहने वाले को अल्लाह ने इसमें रखने की इजाजत ही नहीं दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो, पीरे पीरा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत याद आए, कैसे भुलाओगे आला हजरत को, हर मौके पे तो रहबरी की। आप देखो आला हजरत को क्या कह रहे हैं, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। पीर हो तो गौसे आजम जैसा, अगर गौसे आजम की तरह नहीं तो उनके रास्ते पर, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला।
الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو. آج ہمارے رسمی حضرات جو ہیں الحمدللہ ان سے آپ جڑیے. حشمتی حضرات ہیں ان سے آپ جڑیے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت پر ہے, اعلیٰ حضرت کی باتیں بتاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی تعلیم دیتے ہیں. ان سے آپ جڑو. جو جن لوگوں کا طریقہ اعلیٰ حضرت کے مشن کے خلاف آؤ, سمجھ لو کہ یہ گڑبڑ ہے, ایک دم ٹھیک نہیں ہے. اس سے جڑنے میں آپ کی بربادی ہی بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صلح کلیوں سے بچائے, صلح کلی مولویوں سے بچائے, صلح کلی پیروں سے بچائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو گئے.